मर्द को दर्द नहीं होता। इस डायलॉग ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਰਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰੀ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ महसूस हुई? पहले तो डेली पोस्ट का धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया और पुरुषों की बात करने की आपने हिम्मत दिखाई, जो कि बहुत कम देखा जाता है कि पुरुषों की बात की जाती है। आज हमारी आज़ादी को 78 साल हो गए, जब बराबरी की बात होती है तो पुरुषों के नाम पे कहीं बराबरी नहीं दिखती, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, चाहे वो आर्टिकल 21 हो। सत्याग्रह फॉर मैन जो हम 19 अप्रैल 2025 जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं, हम पूरे देश को जो है आह्वान करना चाहते हैं कि वो सत्याग्रह फॉर मैन में जो है हमारे साथ जुड़े। जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग है जो हमारी कि पुरुष आयोग या नेशनल कमीशन फॉर मैन का जो है वो देश में गठन होना चाहिए। दूसरी बड़ी मांग है जैसे जेंडर न्यूट्रल लॉज जो हैं वो हमारे देश में बनने चाहिए। जैसे 50+ लॉज जो हैं वो वुमेन के फेवर में हैं, पुरुषों के फेवर में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसको लेके वो पुलिस स्टेशन जो है जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सके। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जैसे आपने देखा, अब हम अगर पिछले 3-4 महीने में ही देखें तो कानूनों का दुरुपयोग की वजह से कई अतुल सुभाष हो गया, चाहे वो पुनीत खुराना हो गया, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा दर्दनाक उनकी जो है आत्महत्या हुई। उसको देखते हुए जो हम चाहते हैं कि जो कानूनों का दुरुपयोग है उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का जो है कोई ऐसा प्रोविज़न गवर्नमेंट करे, सो दैट कि जो है जो कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर लगाम जो है वो लगाई जा सके। चौथा, जो पुरुष आत्महत्या कर रहा है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी सरकारों को काम करना चाहिए। जैसे वुमेन हेल्पलाइन है, 1091 है, 181 है, जहां वुमेन जो है अपनी परेशानी जो है वो साझा कर सकती है, चाहे उनके लिए वुमेन सेल हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि भी पुरुषों के लिए जो है इस तरीके की कोई एक हेल्पलाइन जो है वो जारी की जाए, सो दैट कि वो भी अपनी जो परेशानी है वो बयान कर सके। ਐਸੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, 2005 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਯਾਹੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁरुष ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 8882498498, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 5000 ਤੋਂ 6000 ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਨ ਮੈਨ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਾਊਰੀ ਲਾਜ਼, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਰੇਪ ਲਾਜ਼, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਫॉर ਮੈਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 40+ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕਸ, ਯੂਥ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 40+ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਜੈਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। देखो, हम जब किसी विक्टिम को अपनी वीकली मीटिंग में बुलाते हैं तो जब उसकी प्रॉब्लम को हम समझते हैं तो हम उसको लीगली भी गाइड करते हैं। जो जैसे कई इन्वायरमेंट में लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कोई IT प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो सब पढ़े लिखे हैं। तो हम उनको बताते हैं कि भी आपने अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, किस तरीके से, किस किस टाइम पे आपने क्या क्या करना है और किस स्टेज पे आपने क्या करना है, वो हम उसको गाइड करते हैं। उसमें कई लड़के जो है वो पार्टी इन पर्सन भी जो हैं अपने केस लड़ते हैं और कईयों ने पार्टी इन पर्सन केस लड़के अपने केसों को जीता भी है। तो हम उनको हर तरीके से जो है, क्योंकि हमारा ये जो मूवमेंट है ये सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ फंडेड और सेल्फ वॉलंटियर्ड है। इसमें हम किसी तरीके की किसी से कोई फीस नहीं लेते, ये बिल्कुल टोटली फ्री है जी। ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੂਮਨ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 41A ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਨੀय ਉੱਚ ਨਿਆਂਲय ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਕਰੰਟਲੀ ਕੁਝ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ 41A ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਕਿ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ FIR 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ
गैर बराबरी है उस पर? देखो, जैसे अब आप डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन है, डीवी एक्ट 2005 में गवर्नमेंट ने बनाया। उससे पहले जो हमारे पास डाउरी का 498A का लॉ पहले ही मौजूद था, पर फिर दोबारा 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ लाया गया। अब आप इसमें भी देखिए ऐसी विडंबना है कि डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जब लाया गया उसमें सिर्फ डॉटर इन लॉ को ही जो है शामिल किया गया, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। अब आप देखिए कि जब हम जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात कर रहे हैं, जो हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ की देश में पहल होनी चाहिए, जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। 50+ लॉ वुमेन सेंट्रिक लॉज जो हैं वो हमारे जो है शामिल किए गए हैं हमारे उसमें, और पुरुष के पास ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसको वो लेके अब पुलिस स्टेशन जा सके। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर कोई पति या पुरुष अपनी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन जाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये हमारे देश की कितनी बड़ी विडंबना है। आप देखिए 70 करोड़ की हमारी आबादी है और उसका मजाक उड़ाया जाए तो कितनी शर्म वाली बात है हमारे लिए। क्योंकि ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਜੰਗਾਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। देखो, हमारे पास हेल्पलाइन पे कई तरीके की कॉल आती हैं, चाहे वो 498A का मिसयूज़ हो, चाहे वो रेप लॉज का मिसयूज़ हो। जैसे आज ही हमारे को सुबह एक कॉल आई थी पठानकोट से, उसमें कॉल में जो है वाइफ जो है वो हस्बैंड की जो वो कॉल कर रही थी, उसने बोला कि मेरे नेबर्स में एक फैमिली थी, उसने मेरे हस्बैंड को जो है पॉक्सो एक्ट में फंसाया। 19 फरवरी से उसका हस्बैंड जो है वो जेल में है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्स कंप्लेंट, क्योंकि उनके कैमरा में 1 बजे का वो इंसिडेंट उन्होंने दिखाया है और वो 1 बजे उनके घर के बाहर 2 घर छोड़ के कैमरा इंस्टॉल था, उसमें वो साफ दिख रहा है कि उसका जो हस्बैंड है वो 1 बजे अपने घर में एंटर जो है वो किया है। और जो उसमें उन्होंने जो FIR में दिखाया है कि वो 1 बजे वो जो लड़का है वो उनके घर में एंटर करता है और गेट को बंद करके वो लड़की के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट वो करता है। तो मतलब इस तरीके के कई मामले जो है हमारे पास आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है फिर हम उनको जो है वो गाइडेंस देते हैं। और अब तो मतलब इतने बड़े पैमाने पर मिसयूज़ बढ़ गया है कि आप कह सकते हो कि कानूनी नरसंहार पुरुषों का जो है वो इस टाइम इंडिया में हो रहा है, जिसको लीगल जेनोसाइड भी आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा जो है वो पुरुषों का बढ़ गया है। चाहे वो आप मेंटेनेंस के लॉज हो, अब आप देखिए कि हमारे देश में मेंटेनेंस के लॉज हैं। मेंटेनेंस के लॉज में आप देखिए कि लड़की है वो पढ़ी लिखी है, सेल्फ अर्नड है, वो काम कर सकती है, अच्छी जो है उसकी वेल्थ है, फिर भी हमारी कोर्ट्स जो हैं वो बिना सोचे समझे मेंटेनेंस लगा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मेंटेनेंस के लॉज हैं, हमें लड़की को डिपेंडेंसी की जगह उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अब हमारे देश में कई ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा की स्कीम है, और भी जो है आप देखिए मुद्रा लोन की स्कीम है, ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम महिला को सशक्त कर सकते हैं जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बट उसकी तरफ काम नहीं होता। अब आप देखिए जब कोई भी व्यक्ति पेंशन लेता है तो उसको हर साल जो है पेंशन का एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वुमेन जो है, जो वाइफ है, उसको परमानेंट जो है वो मेंटेनेंस मिलती है लाइफ लॉन्ग। अगर हम एक जीवन का प्रमाण पत्र हर साल दे सकते हैं तो फिर महिला के लिए मेंटेनेंस जो है वो लाइफ लॉन्ग क्यों। दूसरा, जैसे हमारी BPL के कार्ड्स बने हुए हैं, BPL के कार्ड भी जो है वो भी हम रिन्यू करते हैं या उसकी भी हर साल जो है वो होती है। बट ये क्या ऐसा कानून हुआ कि जिसमें हम जो है उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस दे रहे हैं, या हम बिना सोचे समझे उसकी वेल्थ को देखते हुए जो है हम उसको एलमनी दे रहे हैं। अभी हमारे पास लेटेस्ट एक क्रिकेटर का केस है जिसमें आप देखिए कि 18 मंथ की उसकी मैरिज थी और उसको लगभग 5 करोड़ रुपया जो है एलमनी देनी पड़ी। क्या आप सोचिए जायज़ है? जो दे सकता है उसकी अर्थ तो ठीक है, अब जो नहीं दे सकता वो फिर आत्महत्या की तरफ जो है उसके कदम बढ़ते हैं। क्योंकि अब आप देखिए, चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो, 80 पेजों का उसमें सुसाइड में वो थक चुका था। 202 साल में उसको 200 बारी जो है कोर्ट में आप लगाइए यूपी जाना पड़ता था, तो आप लगाइए वो इंसान कितना टूट चुका होगा, कितना उसके अंदर दर्द होगा जिसने 80 पेजों में वो दर्द अपना बयान किया। तो मतलब इसके ऊपर काम होना चाहिए।
ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੀਮੋਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਮੋਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਤੀ ਕੋਈ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ चाहिए? देखो बड़ा मतलब सोच के बड़ा हादसा आंदा है कि बई डाउरी तो इलीगल है पर एलिमनी लीगल है। क्यों? क्यों जो डाउरी इलीगल है तो एलिमनी लीगल किस तरह है? मतलब और तुसी यह देखो कि वो भी टैक्स फ्री। अगर किसी को एलुमनी मिल रही है या किसी को एलुमनी में कहीं को प्रॉपर्टी मिली है, तो अगर उसकी अभी कुछ महीने पहले की एक जजमेंट है कि वो प्रॉपर्टी उसको एलुमनी में मिली, तो उसकी जब रजिस्ट्रेशन करवानी हुई तो वो रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मतलब गवर्नमेंट हमारी इतनी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट में जो है, आप देखिए कि वो हो चुकी हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जो है पुरुषों का, आप देखिए महिला और पुरुष वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम बराबरी की बात करते हैं, अगर हम दोनों को बराबर लेके चलेंगे तभी हम समाज में जो है बैलेंस बना सकते हैं। अगर हम एक जेंडर को नीचा दिखा के दूसरे जेंडर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा समाज में अस्थिरता पैदा होगी, स्थिरता पैदा नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें दोनों को जो है बराबर लेके चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के अगर हम चलेंगे तभी जो है सभ्य समाज बनेगा और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को जो है हम बचा पाएंगे। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਐਸੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ कि क्यों ये सब होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो हमारा सत्याग्रह फॉर मेन 19 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे होने जा रहा है, उसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग जो है वो यही है कि नेशनल कमीशन फॉर मेन बने। हम चाहते हैं कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी हो जो पुरुषों की समस्याओं की, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो काम करे, कोई ऐसा वो हेल्पलाइन जारी करे या कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने में वो जो है वो लॉ कमीशन को अपनी रिपोर्ट्स भेज के इस तरीके की कोई बॉडी बनेगी जो पुरुषों की डे टू डे समस्याएं हैं, जो घरेलू हिंसा का वो शिकार हो रहा है या वर्क प्लेस के ऊपर जो उसके साथ जो है प्रताड़ना हो रही है, उसके ऊपर जो है वो ऐसी कोई बॉडी जो है, चाहे वो पुरुष आयोग हो, वो उसके ऊपर काम कर सकेगा। जैसे आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर मेन जो है उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और हमें बहुत होप है कि सरकार उसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि अभी जो पिछला हमारा संसद का जो सत्र था उसमें जो माननीय दिनेश शर्मा जी बीजेपी के राज्यसभा से मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने मुखर होकर ये बात रखी है कि भाई जो 3 गुना पुरुषों का जो आत्महत्या बढ़ गई है उसके ऊपर पुरुष आयोग जो है वो बनना चाहिए। आज ही सुबह आप देखिए नवरात्रे चल रहे हैं और कितनी अच्छी बात है कि सुबह ही माता के दरबार से जो है सत्संग में ये बात कही गई कि जैसे एक महिला ने अपने पति के इतने टुकड़े करके उसको ड्रम में बंद कर दिया, उसको हाँ मेरठ जो है हम हत्या की बात कर रहे हैं, जो बहुत बार्बरिक जो है आप हत्या कह सकते हो, उसके ऊपर दरबार से भी यही बात हुई है कि जैसे आप देखिए शिवजी से विवाह के लिए जो है कई उसकी वो हुई, तो उसको ही देखते हुए जो है कि पुरुष आयोग का जो है वो गठन होना चाहिए। जो पुरुष जो है इतना दर्द अपने अंदर महसूस कर रहा है, उसको देखते हुए उसके लिए पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा जी हैं जो अभी बीजेपी से हैं, उन्होंने भी इस बात को मुखर होकर उठाया है कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि पुरुष आयोग के ऊपर या मेंस कमीशन के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਹ ਸਭ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ बहुत कुछ चल रहे थे, उस तो बाद दोष उत्ते होर लग गए, दोषी साबित होने तो पहला ही दोषी करार दे दिता गया। देखो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब एक लड़की पुलिस में कंप्लेंट करती है तभी जो है पुरुष को जो है कसूरवार मान लिया जाता है। आप देखिए हमारे जो कानून हैं या जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उसमें आप देखिए कि जब महिला द्वारा कोई शिकायत की जाती है
तो उसमें उसका नाम छुपाया जाता है। चाहे वो कोर्ट्स में आप देख लीजिए, कोर्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लड़की का नाम जो है उसको छुपाया जाता है। जबकि पुरुष की जो है प्रॉपर जो है आप लगाइए कि डिजिटल मॉब लिंचिंग सोशल मीडिया पे की जाती है। अभी आपने जैसे मुस्कान का केस देखा कि वो ड्रम के ऊपर उसकी कितनी दर्दनाक हत्या की गई, फिर भी उसके मीम्स बनाए गए। मतलब हम अगर आप उसको जेंडर को उलट कर दीजिए, ऐसा ही अगर किसी महिला की हत्या की गई होती तो शायद ही किसी की इतनी हिम्मत होती कि वो सोशल मीडिया पे मुखर होके ऐसे कोई जो है मीम्स बना पाता। ये मीम्स पुरुषों के ऊपर जो मजाक है वो पतियों के ऊपर ही जोक्स भी आप देखिए पतियों के ऊपर बनाए जाते हैं, मीम्स भी जो हैं वो पुरुषों के ऊपर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष और महिला जो है वो बराबर हैं। समाज जो है वो पुरुष और महिला से ही बनता है, और एक सभ्य समाज तभी बनेगा जब दोनों बराबर ही जो है वो चलेंगे। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਐਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ? इस बारे की जवाब? नहीं, देखिए पहले तो बात हमने वुमेन कमीशन को बंद करने की बात नहीं करी। हमने पुरुषों की जो बात है वो रखने के लिए हमने पुरुष आयोग के गठन की मांग की है। हमने कहीं भी हम ये नहीं कहते कि हम जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अगेंस्ट हैं, या हम उनके लिए अगर उनके साथ कोई क्राइम होता है तो हम उस क्राइम के में जो है हम उनमें सहभागी नहीं। जिसके हम ये कहते हैं कि जिसके साथ भी गलत हुआ है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप देखिए कि हमारे देश में